मेरा नाम जमील शाह है। करीब 26 साल का हुआ हूँ तो मैंने शूज़ का काम चालू किया है। काफ़ी स्टार्स हैं जिनके लिए मैं शूज़ बनाते रहता हूँ। मैं बिहार से हूँ और बिहार का एक छोटा सा गांव दोघरा दरभंगा ज़िला में पड़ता है। वहाँ पे मेरी एक छोटी सी ज़िंदगी थी जिसको मैंने बॉम्बे में लाया। Jamil's shoes are handmade and the raw materials are sourced from Dharavi, which is the recycling hub of India. The best thing about Jamil is that you can just go up to him and you can tell him if you have a particular design that you're looking for or a color, and you'll get exactly what you're looking for. He has made red shoes, green shoes, purple shoes. He has made shoes of that type which you can just fold it and put it in the pocket. He had that kind of idea when nobody thought about it. Coming from a place like Dharavi, not many people took him seriously. So they felt कि हाँ यार चलो ठीक है, ये कोई मोची का टाइप का होगा, but नहीं. Came with that thought. I need to make shoes that you wear and you don't feel that you're wearing anything. मेरे जो जूते हैं इट्स लाइक सॉक्स जैसे हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। आपको इंडिया में अच्छे डांसिंग शूज़ नहीं मिलते हैं। खुशी होती है जब लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि यार तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं। Dancing shoes are specifically designed and they are built to support your feet and to help you in movements. Dance shoe is like ghungroos. For an Indian classical dancer, you have ghungroos, which are most important. Same way for Western dance form, the shoe is as good as a ghungru. It just makes you feel better than your own outfit as well. It helps you in those smooth movements across the floor when you're taking your turns, your chaînés, jetés, and at the same time it gives you control. I know of many people who've got a fetish for shoes. That's only because when you wear shoes, only then you know that you are complete. बचपन में मैंने फादर के साथ काम किया है। वो खेती वगैरह किया करते थे। काफ़ी पढ़ने का शौक था। एग्ज़ाम था एक बार और मुझे पेन और बुक वगैरह चाहिए थी। फादर ने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूं, तो प्लीज़ आपको जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। खेल मस्ती तो सब बच्चे करते हैं। दोस्तों के साथ जब खेलता था, बड़े बड़े लोग आते थे जो शहर से काम करते हुए, तो मुझे उनके साथ बैठ के बातें करना बहुत पसंद आता था। मैंने कई बार ये सोचने की कोशिश की कि मैं कब ऐसा बनूंगा। तेरह साल की उम्र में मैं जब दिल्ली गया और वहाँ पे एक छोटे से फैक्ट्री में मैंने काम स्टार्ट किया। बैग्स और वॉलेट्स के काम होते थे वहाँ। काफ़ी मेहनत का काम है, आप लोगों को पता होगा। तो मैंने और मेरे दोस्त ने एक छुट्टी ली, उस दिन डांडी मारी हमने और बोले चलो आज हम कहीं जाते हैं। क्रांतिवीर मूवी हमने देखी वहाँ पे, और देखते देखते मेरे मन में ख्याल हुआ ये लोग जब यहाँ पे थिएटर में दिख रहा है तो आदमी भी यहाँ दिखना चाहिए। मैं थिएटर में एक काम करने वाला एक आदमी था, मैंने उनको पूछा कहाँ हैं ये लोग, तो उन्होंने बोला कि ये तो बॉम्बे में रहते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि बॉलीवुड से अगर मिलना है तो तुमको बॉम्बे ही घुसना पड़ेगा। मुझे 2 दिन के बाद पता चला कि मेरे मामू जो है वो बॉम्बे जाने वाले हैं। तो मैंने मामू को बोला बॉम्बे जाना है। तो बोले कि देखो एक दिन रुक जाओ, कल एक आदमी आ रहा है, तुम उसके साथ बॉम्बे चले जाना।
मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मेरे एक कोई रिश्तेदार आए थे जिन्होंने मुझे बाय लोकल मुझे धारावी में लेकर के आए। धारावी में जब मैं इंटर किया तो मैं बोला यार ये तो इससे अच्छा मेरा गांव है। Actually, stepping into Dharavi was a very big revelation for me. First visual that comes to my mind is small little houses. They're all covered with a blue plastic sheet, and it's definitely not a pretty place, but it has its own beauty. When I was working on this film Slumdog Millionaire in Dharavi, we shot a couple of scenes for the song like O Saya and something like Ringa Ringa. And what I was seeing over there is the hunger for people to come up and do some kind of work, the hunger for people to try to be noticed. Full of people who've taken charge of their own life, despite the hardships, despite the circumstances that they live in. धारावी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे एक मुकाम हासिल करने का मौका दिया, मैं अपने आप को कुछ बन सका। I have visited Dharavi only with Jameel, and I think you just find everything in the world in Dharavi. It's like gold mine. We spent about 9 months visiting Dharavi, and that's how we stumbled upon Jameel. And I think he's one of the most amazing people we met in the course of this book, because he's so strongly driven, self-motivated, and I think that's the quality that I have seen that makes a person successful. पापा जब खेती वगैरह करते थे, उनको ऐसा लगा कि मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ मेरे बेटे को भी उसी तरह काम कराऊंगा, लेकिन लकीली मेरा नसीब अलग निकला। Can you ever imagine a Bollywood movie without songs? Songs हमारे बॉलीवुड के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि शायद एक आदमी के लिए ऑक्सीजन का। और आप माने या ना माने, एक वक्त था जब हम कहते थे कि 1 या 2 हिट गाने की वजह से फिल्में चल जाया करती थी। I think every emotion we portray through music, we portray it through poetry, we portray it through dancing. They are reflections of what we are. So they have to, and they must always have music and dance. And when you have dance, then what comes first is this guy going to deliver something which is going to be stylish? Like I know of people like Veer Shantaram. Now he was so complete and choreographed that in his movies even the fish would dance, even the elephants would dance. चाहे वो अमर अकबर एंथनी हो या धर्मवीर हो या लावारिस के मेरे अंगने में हो, तो डांस होता था, गाने होते थे, कलर्स होते थे। In our own country, you see every style of dancing is bare feet. Kathakali, Mohiniyattam, down Kerala, right up there, bare feet. These are schools which are training people, the discipline and the form of art that has to be maintained. That is why it has no shoes to be worn. Later on, we saw a new form of dancing which was also inspired from the West, and it was performed brilliantly by Helen G. कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमें एक अलग ही दुनिया में लेके जाती है। जब लाइट्स ऑफ होती और फिल्में शुरू होती तो हम उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं और उस दुनिया में हम खो जाते हैं। 80s was the era of disco. Mithun ji dancing to being I am a disco dancer, and all these songs came into being. For me, dance was like a release, it's an outburst of my inner self. I'm a bad cocktail of Elvis Presley, Fred Astaire, very Indian cocktail.
कारखाने में एक छोटी छोटी टीवी किधर न किधर होती है, तो मैंने भी एक डांस रियलिटी का शो देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो लोग हैं डांस करते हुए बॉलीवुड में गए हैं, तो मैंने डांस क्लासेस में जाने की कोशिश की। तो मैंने बहुत सारे ऐड देखे डांस क्लासेस कहाँ कहाँ होते हैं। पहले एक बॉलीवुड क्लासेस चल रहा था, वहाँ पे गया। मैंने उनको बताया कि मेरे पास कुछ इतने पैसे नहीं हैं और मुझे सारी चीज़ें सीखनी है। जब मैंने उसका फ़ीस सुना तो मैंने सोचा यार तो मेरे तो एक महीने की सैलरी यहीं चली जाएगी। काफ़ी दुख हो रहा था कि यार मैं जो सोच रहा हूँ शायद वो पता नहीं अल्लाह ताला पूरा करेंगे कि नहीं। फिर उसके नीचे ही 2-3 लोगों के नीचे संदीप सर का नाम था। मैं जा कर के संदीप सपारकर को मिला पहली बार। I felt he didn't have focus in life as a youngster. No, most of the teenagers don't have. Most of the teenagers don't have, and I thought he was one of them. उसकी हाइट, उसकी जो चलने का तरीका, उसका जो लैंग्वेज, वो मेरे मन में बैठ गया देख करके। यार कुछ तो मैंने देखा लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगा कि यही बहुत बड़ा स्टार है जो मैं इनको कुछ पूछूं। और जिस तरह से वो हंसते हुए और लाइक खिलखिलाते हुए जब वो नीचे आ रहे थे, तो मुझे लगा थोड़ा थोड़ा अंदर से फील हो रहा था कि अब लगता है कि कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अच्छा होगा। So I told him, this is the class fee, this is the area where we have our dance classes, you're most welcome to come. And his face for that moment just fell. And when he was leaving at the entrance of my bungalow that time, he told me, you know, the fee that you're charging is more than my salary. And honestly, I was quite surprised because I had never met somebody like that. So I told him, okay, let's do one thing. Since you want to learn to dance and I would love to teach somebody who's enthusiastic to learn to dance, you pay me whatever you want to pay me and start coming into the class. हंसते हंसते उन्होंने बोला कि आप कल क्लास से आ सकते हो। और मैं जब क्लास में गया तो मैं सोचा मैं कहाँ आ गया, क्योंकि वहाँ पे कोई हिंदी बात नहीं करता। लेकिन मुझे थोड़ी सी वो जो साइन लैंग्वेज होती है ना, वो मुझे आता है। तो सर के जो होठ चलते थे ना, तो मुझे पता चलता था कि सर ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। So it was like a strange time in the classroom because I had to learn to speak in Hindi, and he was very supportive, and I think he learned English from me and I learned Hindi from him. फिर मैंने क्लासेस सीखना किया, फिर मैं वहाँ पे लोगों को मिला, फिर मेरा जो तरीका है वो धीरे धीरे चेंज होता गया। आप समझ सकते हो कि एक बिहार से आकर के वो फटा पैजामा, वो फटा चप्पल और वो फटा गंजी पहनने वाला आदमी थोड़ा अच्छे कपड़े पहनने लग गया है, तो उन्होंने मुझे दिया है। Best part about him was that he was very dedicated. Never did I see him miss a class even once, even if he was unwell. He used to make, I think, belts and keychains at times, and that in leather. They normally work for long hours, 10 hours, 12 hours, and they get paid per hour. And here it was somebody who was leaving his work, leaving money, which was very important for him. And dance was not even a career for him that time. I think was a very big thing. कुछ दिनों के बाद मैंने सर को देखा डांस के शूज़ ऐसे बांधते हुए। मैंने सर को पूछा, सर ये जूते बहुत स्मार्ट है, कहाँ से लिया आपने? सर ने बोला, जमील ये मैंने लंदन से मंगाया। बोला सर मैं बैग और वॉलेट के काम में काम किया हूँ, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ बनाने का, और मुझे पता है कि लेदर क्या होता है, बाकी चीज़ें जो सारी चीज़ें होती है वो मुझे पता है। It was, I remember, a show I was supposed to perform for. I had ordered for shoes to come from London and they hadn't come. And so he said, let me try to make it for you. And I was like, now don't irritate me more. It can't get worse than this. So I said, okay, go make. That's the only, when you're fed up, what do you just tell a child? Do it. और शूज़ लेकर के मैं धारावी में गया। मैंने उनको दिखाया, बोले क्या है, क्या है ये। दूसरे कारखाने में गया, उनको भी समझ में नहीं आया। ऐसे 4-5 कारखाने में गया। फाइनली जो पहले वाला मिला था, मैं उनके पास गया, उनको समझाया, फिर उन्होंने बनाया। बनाने के बाद सर को दिखाया मैंने। And I was quite surprised. He came back with a shoe which was quite horrible. If you hit somebody with it, the person will die. It was like that strong a shoe. I had to explain him a little bit about the shoe. A shoe which we wear normally and a shoe which you wear for dancing is lot different. And then he made a second one, a third one, a fourth one, and they kept getting better and better. सर ने बोला, एक आइडिया है मेरे पास, तो एक काम करो, तुम जितने कलर्स तुमको मिलते हैं सब अलग अलग कलर में बनाओ, ताकि मैं इसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज कर सकता हूँ। He made 14 pairs of shoes, and the 14th one which he got for me was like butter. You just wear the shoe and you just feel that there is nothing. You don't expect a young boy
in a couple of months to make a shoe which is better than the ones that you've been wearing for the past 25 years. सर इतने खुश हो गए और उनका जो बात करने का तरीका, जो बोलते थे कि मैं तुमको मारूंगा जूते से, वो निकल के इतना निखर के आया कि जमील अब ये जूते तुम लोगों को दे सकते हो, क्योंकि अब ये थोड़े से अच्छे जूते हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद का एक छोटा सा फैक्ट्री डालता हूँ जहाँ पे मैं अपने हिसाब से, अपनी सारी लैंग्वेज के हिसाब से मैं उसको बना सकूँ। ये हमारे सुरेश भाई है जो बॉटम का काम करते हैं, नीचे हील लगाना, सोल लगाना। दूसरे जो ऊपर से आप जो देख रहे हैं राजू भाई है ब्लू टी शर्ट में। और एक कहावत है, रोज देखते हैं गुलाब के फूल जो होते हैं वो उसकी जो खूबसूरती होती है वो हमारे राजू भाई करते हैं, और जो उसकी डंडी होती है ये हमारे सुरेश भाई करते हैं। तो जैसे अगर सुरेश भाई वो डंडी को हिलाए तो उसकी खूबसूरती दिखती रहती है, उसी तरह से ये हमारा काम होता है यहाँ पे। कितना इंच की है? अभी तो उसको फिटिंग नहीं किया, उसका बॉटम जो है ना, मतलब ये जो बनाया है बॉटम बड़ा की। हाँ, चौड़ा करके बनाया। 2 नंबर का पैटर्न दिखा और 1 नंबर का। 1 नंबर का अपने पास नहीं है। ये सब कर देना जल्दी। अभी ये संडे को दिया नहीं है तो ये संडे को दे दूंगा सब सारा जूता। आज सब हो जाएगा। राजू भाई ये पिंक वाला जूता था ना, ये वाला, ये देखिए ना, ये वाले पत्ते वाले का उसका साटन है अपने पास। तो इसका साटन अपने पास ग्रीन में था ना, थोड़ा ग्रीन मिक्सी वाला। हाँ, जो दिखाया था। हाँ, तो उसी में बना दीजिए इसको। ठीक है। He came to sell shoes. At the end of the day, he realized the value of those shoes. Instead of making only for others, he also made for himself and actually wore them and performed. अभी जो आपने देखा ये बिल्कुल यहाँ पे खिला मारा हुआ है, और अब हम चाहते हैं कि ये जो सपोर्ट है हमेशा बिल्कुल डांसर को बना रहे, इसलिए हम इसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा खिला मार करके उसको फ्लैट करके हम इसको बिल्कुल एकदम मोल्ड की तरह बनाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमेंको शूज़। जो आपने अभी हाल ही फ़िलहाल में पिक्चर देखी होगी, ज़िंदगी मिलेगी न दोबारा, एक फॉरेनर लेडी डांस करती है बहुत सारे पंख लगा करके, बहुत साउंड होता है इसका। इसमें बहुत सारे नेल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे रबर दिया जाता है इसलिए ताकि इसको, ये साउंड को थोड़ा सा ब्रेक करे और इसका साउंड ज़्यादा निकले। ये मैक्सिमम लेदर में बनता है। दूसरा जो हमारा मेंस का शूज़ है, ये हमने 2 लेयर में लगाया हुआ है ताकि ये आँच को सपोर्ट देता है। Jameel is one person I've seen who is the first of its kind in this country to make shoes for this particular purpose, Latin American dancing. लैटिन बॉलरूम डांसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहली बात कि आपकी जो क्वालिटी है वो बढ़ा देती है। मेरा जो अब बात करने का तरीका, एक बॉलीवुड जैज़ डांस करने वाले का स्टाइल अलग होगा, हमारा थोड़ा अलग हो जाता है। ये लैटिन शूज़ है।
हमने स्वेट शूज लगाया हुआ है। लैटिन बॉलरूम डांसेस में तो हमेशा पॉइंटेड होना चाहिए, ये बिल्कुल ऊपर जाती है। हाथ में जब सपोर्ट मिलता है आपको तो आपको एनर्जी मिलती है। ये हमारा छोटा सा टेक्निक है, आप यकीन नहीं करेंगे, आप इसको रोल कर सकते हैं। तो ये ऐसे रोल होता है, ये आपको पूरा यहाँ तक लेके आता है ताकि आप पूरा टो पे डांस कर सके। और आप देखेंगे इसके पीछे हमने सोल लगाया हुआ है, इसको स्वेट बोलते हैं, ताकि आपको ग्रिप भी देता है और थोड़ा स्पिन करने में अच्छा होता है। तो आजकल इंटरनेशनली लोग भी ये सब प्रिंटेड पहनना स्टार्ट कर दिए हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो डांस के शूज़ बनाती है। मेरे मन में ये ख्याल था कि जब वो लिखता है मेड इन इंग्लैंड तो मुझे इस पे लिखना है मेड इन इंडिया। He's made certain kind of shoes for certain people who began the trend of all this Latin American style in our country, like Sandeep Suparkar. And I was doing a show, I had around about 8-10 pairs to be made, but that was a small amount. But still he said, sir, आप 8-10 मत बनाओ, मैं 15 बनाता आपके लिए। लॉन्जी सर ने काफ़ी अच्छे अच्छे जूते बनवाए थे, कलरफुल जूते, कॉस्ट्यूम के हिसाब से मैचिंग जूते चाहिए थे। मुझे इतनी खुशी हुई मिलकर के कि यार अब लगता है कि मेरा जो सपना है वो धीरे 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 करीब हो रहा है, क्योंकि मैंने लॉन्जी सर को मिला। So I had red and blue and purple, you know, so all these kind of colors were there in the bag. एक शूज़ जो जैज शूज़ मैंने बनाया उनके लिए, वो हमेशा मुझे बोला करते हैं कि जमील ये जूते ना तूने बहुत अच्छा बनाया है, ताकि मैं उसको ऐसे फोल्ड करूँ और मैं अपने पॉकेट में रख सकूँ। Mahesh Manjrekar also was in the show when I was there at that point of time. He called for green shoes, man. And he actually made those green shoes and we thought कि ये बनाएगा कि नहीं. So Jamil is one kind of a person who's also a character. You tell him anything under the sun, he'll try to get it done. संदीप सर ने मुझे बुलाया कि जमील मेरे घर पे आओ, मुझे कुछ काम है। मैं जब गया उनके घर पे, प्राइवेट क्लासेस चल रहे थे, मैंने ऐसे झांक के देखा तो सर ने बोला जमील तुम अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, फारा जी थी, काजोल थी और अमीषा पटेल थी। बोलते ना कि इंसान जो सोचे और जो चाहे वो मिल जाए तो उनको क्या खुशी होती है, वो मेरा उस टाइम पे रिएक्शन था। और फारा जी ने बोला कि जमील मुझे तेरा नंबर दे दे, और मुझे दूसरे दिन फ़ोन आता है कि जमील एक काम करो, मेरे सेट पे आ जाओ, मुझे कुछ जूते बनाने हैं किसी के लिए। मैं जब गया उन्होंने बोले कि मेरे लिए 4 जूते बनाना और मेरी दोस्त के लिए भी 4 जूते बनाना। मुझे ये भी नहीं बोला कि काइली मिनोग है। और आज भी मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि काइली मिनोग के लिए मैंने जूते बनाए। और दूसरे दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आज शाम को शाहरुख खान ने इनवाइट किया था उनको डिनर के लिए, और वो वहाँ नहीं गई थी क्योंकि वो मेरे साथ जूते के डिस्कस कर रही थी। मेरा सपना है कि मैं एक डांस स्टोर खोलूं इंडिया में, ताकि जो डांस लवर है उनको कोई चीज़ की कमी नहीं पड़े। आपको मोबाइल कवर चाहिए बट डांस स्टाइल में चाहिए, वो मिलेगा, कॉस्ट्यूम मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगा, शूज़ तो मैं इंशाल्लाह बनाता ही हूँ। बहुत साल पहले मिस्टर ओबामा जो यूएस प्रेसिडेंट है, बॉलरूम डांस करते हुए मैंने उनको देखा था। तो मेरा एक सपना है कि मैं उनको कैसे भी करके वहाँ तक एक जूते पहनाऊँ, ताकि उनको भी पता चले कि इंडिया से भी कुछ डांस के शूज़ आते हैं जो मैं पहन सकता हूँ। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर वहाँ तक जूते पहुँचाऊँगा। He loves to collect hotel room keys. I don't know if you know that. Whenever we've done any shows, every hotel we have stayed in, the key of the hotel is with him. And he just loves to collect those keys. I don't know for what. And when I asked him that, he said, they're just memories. Everything about him is just the same. A wonderful boy,
very caring. It's good to see somebody in his 30s who's ready to take on the world and go and do what he wants to do. मेरी एक बड़ी बहन है, मैंने उनको बोला था कि जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी मैं उस दिन बड़ा नहीं बन जाऊंगा। ये सच बात है, जिस दिन उसकी शादी हुई उसके कुछ दिनों के बाद तरक्की बोले या अब जो भी बोले उनको थोड़ा सा बढ़ता गया और हमारे जो भाई हैं अब उनका प्यार और हमारे साथ सपोर्ट रहा है। और जो चीज़ें मैंने नहीं की है, जो मैं पढ़ाई नहीं कर सका, जो चीज़ें मैंने मिस की है वो मैं अपने भाई को देना चाहता हूँ ताकि वो स्ट्रांग हो सके। वेरी गुड, या ऑफ कोर्स, आपको कैसे भूल सकते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर। I'm all out of journey में डांस क्लास